آغا جی میں مانتا ہوں 10 سال راہیل نے حویلی سے دور رہ کر اچھا نہیں کیا، لیکن اگر یہ اس وقت غلط ہوتا تو آج میں اس کے لیے حویلی کا دروازہ نہیں کھولتا۔ اس کی جذباتیت نے صرف ہمیں ہی نہیں خود اسے بھی نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن میں آج آپ سے پھر کہتا ہوں آغا جی، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں پر بڑے سنبھال لیتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اسے معاف کر دیں۔ امیر الدین عاجزانہ لہجے میں بھائی کے سامنے راہیل کی وکالت کر رہے تھے۔ معاف کر دوں، کہنا آسان ہے مگر برسوں کی اذیت لمحوں میں فراموش کر دینا بہت مشکل ہے امیر الدین۔ آغا صدر الدین اپنا بھاری وجود لیے صوفے پر ڈھہ سے گئے۔ تم نے صحیح کہا، بڑے بچوں کی غلطیوں کو سنبھال لیتے ہیں، میں بھی سنبھال لیتا۔ غصے میں کہہ دیا کہ حویلی چھوڑ دے تو یہ چھوڑ ہی گیا؟ ذرا نہ سوچا کہ باپ کے کندھے جھک جائیں گے، ماں کا جگر چھلنی ہو جائے گا؟ اور اگر گیا تھا تو واپس آ جاتا، یوں 10 سال تک دوری کی سزا تو نہ دیتا۔ اس وقت شاید میں معاف کر دیتا۔ اب اگر 10 سال اس کے بغیر گزار لیے ہیں تو باقی کی عمر بھی گزار لوں گا۔ راہیل نفی میں سر ہلاتے تڑپ کر آگے بڑھے اور باپ کے قدموں میں بیٹھ کر سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ بابا جان، اگر جو مجھے ایک لمحے کو بھی اس بات کا یقین ہوتا کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میں بہت پہلے واپس آ جاتا۔ جب باپ کا یقین ہی نہیں تھا تو پھر اب کیوں آئے ہو یہاں؟ آغا صدر الدین کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں ٹوٹ گیا ہوں بابا جان، شکست خوردہ ہوں۔ آپ سب سے دور رہ کر میں بھی کبھی خوش نہیں رہ سکا۔ ادھوری زندگی جی جی کر تھک گیا ہوں۔ میں اب مزید آپ سے اور اماں جان سے دور نہیں رہ سکتا۔ پلیز بابا جان، مجھے معاف کر دیں۔ اب کبھی آپ لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ راہیل کی امید بھری نگاہیں باپ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ ہاجرہ بی بی شوہر کے قریب آئیں اور اپنا ہاتھ ان کے کاندھے پر رکھ دیا۔ آغا صدر الدین لمحوں میں شریک حیات کی دلی کیفیت سمجھ گئے۔ نیک اور صالح بیوی نے زندگی کے ہر کٹھن وقت میں خوشلوبی سے ساتھ نبھایا تھا۔ 10 سال جوان اولاد کی جدائی میں گھلتے دیکھا تھا، پر کبھی لبوں سے شکوہ نہیں سنا کہ آخر کیوں بیٹے کو حویلی چھوڑنے پر مجبور کیا۔ وہ باپ تھے، سہ سکتے تھے، پر جانتے تھے کہ ماں کا دل ایک بار پھر اولاد سے دوری برداشت نہیں کر پائے گا۔ آغا صدر الدین کا ہاتھ آہستہ سے اٹھا اور بیٹے کے سر پر ٹک گیا۔ لمبے انتظار کے بعد بالآخر دروازہ کھلا اور ایک ایک کر کے حویلی کے تمام بڑے باہر آنے لگے۔ فردین تیزی سے اس طرف لپکا، مگر راہیل پر نظر پڑتے ہی برک سا گیا۔ وہ اسے اپنے ذہن میں بنے آئیڈیل سے زیادہ شاندار لگے تھے۔ بھائی پر نگاہ پڑتے ہی راہیل نے مسکرا کر بازو وا کر دیا۔ جواباً فردین بھاگ کر ان بازوؤں میں سما گیا تھا۔ برسوں کے بچھڑے بھائی چند لمحے دنیا سے بے خبر ایک دوسرے سے لپٹے کھڑے رہے۔ ہیلو ہیلو بھائی، ادھر ہم بھی ہیں۔ سویرا شہیر کو گود میں اٹھائے مسکراتے ہوئے آگے بڑھیں۔ فردین سائیڈ میں ہوا تو راہیل بھی سویرا کی طرف بڑھے۔ کیسی ہو تم؟ انہوں نے گول مٹول سے شہیر کا گال پیار سے چھوا۔ بالکل ٹھیک، اور آپ کیسے ہیں؟ راہیل کا سر اس بات میں ہل گیا۔ نرمین نے کھنکار کر سب کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ راہیل نے پہلے نرمین کو پھر سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مسکرا کر راہیل کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر تعارف کروانے لگی۔ یہ نرمین ہے، امیر الدین کی چھوٹی بیٹی، اور اب فردین کے منگیتر بھی۔ ہاں گڈ۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نرمین کے سر پر ہاتھ رکھا، ساتھ ہی ان کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑی شرمین پر پڑی تو بجلی کے جھماکے کی طرح ایک چہرہ ان کی نگاہوں میں چمکا۔ وہ کچھ دیر اس پر سے نگاہ ہٹانا بھول گئے۔ یہ شرمین ہے، نرمین کی بڑی بہن۔ ہاجرہ بی بی کے بتانے پر ان کے ذہن کے پردے پر 10 سال پہلے کے کچھ منظر ابھرے، جن میں 10-11 سال کی 2 بچیاں پٹھانی فراقیں پہنے حویلی کے باغ میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگی پھر رہی تھی۔ اوہ، اتنی بڑی ہو گئی؟ یہ کہتے وہ نظر پھیر گئے۔ شرمین کا خیال تھا کہ وہ اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھیں گے، مگر خود سے صرف نظر کرنے پر وہ کچھ بدمزہ سی ہو گئی۔ تو نے یہ اچھا نہیں کیا راہیل، سمیرہ کو اس فرنگن کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کسی نہ کسی طرح لے آتا، وہ تو اسے اپنے ہی رنگ ڈھنگ میں ڈھال لے گی۔ ہمارا خون عیسائی عورت کی گود میں پروان نہیں چڑھنا چاہیے۔
हाजरा बीबी के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए उठते उसके हाथ रुक गए। किसी अनजान समीरा के बारे में जानने के लिए उस अज़ली तजस्सुस बेदार हो गया। उसने अपना कान तकरीबन दरवाजे के साथ चिपका ही दिया। आप नहीं जानते अम्मा जान, मैं खुद भी किस कर्ब से गुजर रहा हूँ। वहाँ के कवानीन बहुत सख्त हैं और फिर अपने लोगों को वो प्रोटेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने पिछले 1 साल में हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, पर उसकी माँ किसी सूरत उसे मेरे साथ भेजने के लिए रजामंद नहीं हुई। सीढ़ियों पर आहट सुनते ही उसने मजीद कुछ ना सुनना बेहतर समझा और दस्तक दे डाली। कौन है? आ जाओ। हाजरा बीबी की आवाज़ सुनते ही शर्मीन दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। हाजरा बीबी जाए नमाज पर बैठी थीं और राहिल उनकी गोद में सर रखे लेटे थे। उन्होंने सर घुमाकर शर्मीन को देखा तो फिर वापस सर घुमाना भूल गए। बीबी जान, चाय तैयार है। सब आपका और राहिल आला का इंतज़ार कर रहे हैं। आप आ जाएं तो फिर चाय पी लें। अरे, शाम की चाय का टाइम हो गया? मुझे बातों में पता भी नहीं चला। जीती रहे मेरी बच्ची, बस मैं अभी असर की नमाज़ पढ़ कर आती हूँ। राहिल, तू शर्मीन के साथ चला जा बेटा। हाजरा बीबी ने उनका सर गोद से उठाया तो वो जी अम्मा जान कहते उठ खड़े हो। शर्मीन उनके मुसलसल घूरने की वजह से अंदर ही अंदर जुज़बुज़ हो रही थी, इसलिए राहिल का इंतज़ार किए बगैर ही बाहर निकल आई। सीढ़ियाँ उतरने से पहले उसने अपने पीछे खटाक की आवाज़ सुनी। पलट कर देखा तो राहिल लाइटर जलाकर सिगरेट सुलगा रहे थे। वो हैरत से उन्हें करीब आता देखती रही। आप सिगरेट पीते हैं? हाँ, क्यों? ऐसे, यहाँ कोई नहीं पीता ना, इसलिए। वो कंधे उचकाकर उन्हें कुछ जताती हुई सीढ़ियाँ उतर गई और वो उसकी कमर पर झूलती चोटी को देखते रह गए। उन्हें हवेली में आए 2-3 दिन हो गए थे और इन दिनों में उन्होंने जब भी शर्मीन को देखा तो पानी रात में कड़कती बिजलियों की रोशनी में चमकता उसका चेहरा ज़रूर याद आता था। मेरी रूह, ऐ मेरी रूह, तू आरज़ुओं से लदा जहाज़ है जो रेत में गड़ गया है। तेरे बागवानों को जुम्बिश में लाने के लिए हवा कहाँ से आएगी? कौन सा चढ़ाव तेरे पतवार को आज़ाद करेगा? तेरा लंगर नीचे गिर पड़ा है। तेरे बागवान खुलने के लिए तैयार है, लेकिन तेरे सर पर आसमान खामोश है। समंदर पर ठहरा हुआ पानी तेरे जमूद पर खंदाजन है। अब तेरे और मेरे लिए कौन सी उम्मीद बाकी है? ओह शिट, इस लाइट को भी अभी जाना था। राहिल खलील जिब्रान के नाबलेट अर्जी देवता में मुनहमिक थे, पर बुरा हो इस लाइट का जिसने उनका इन्हमाक तोड़ दिया था। वो मोबाइल की टार्च जलाकर किचन की तरफ आए। या अल्लाह, अब इतनी रात में कहाँ ढूंढूं? एक तो ये शमसा बुआ भी ना जाने चीज़ें कौन कौन सी खानों में रख छोड़ती हैं। शर्मीन किचन की कैबिनेट्स में घुसी कुछ तलाश कर रही थी। तुम इस वक्त क्या ढूंढ रही हो? राहिल के अचानक प्रश्न पर वो खौफ से उछली और पिछली कैबिनेट से जा टकराई। टॉर्च की लाइट उसके वजूद का अहाता किए हुई थी। वो मैं कैंडल ढूंढ रही थी। ये कहते एकदम उसे याद आया कि उसके वजूद पर दुपट्टा नहीं है। जल्दी से उसने अपना रुख मोड़ लिया। शर्म से उसकी निगाहें ज़मीन में गड़ गई थीं। उसका तो ख्याल था इतनी रात को सब सो रहे होंगे, किचन में कोई नहीं होगा। राहिल ने उसकी कैफियत समझते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मिल जाए तो एक मुझे भी दे देना। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उनके जाते ही शर्मीन की जान में जान आई। 2 मिनट के बाद उसे एक कैबिनेट से कैंडल का पैकेट मिल गया। 2 कैंडल जलाकर वो पहले अपने कमरे में आई, अच्छी तरह वजूद के अगर दुपट्टा लपेटा, फिर एक कैंडल लेकर राहिल के कमरे की तरफ आ गई। दरवाज़ा खुला हुआ था, वो शायद वॉशरूम में थे। उसने साइड टेबल के शीशे पर कैंडल जमा दी। जैसे ही पलटने लगी, रेशम के धागों वाला दुपट्टे का पल्लू साइड टेबल के हैंडल में फंस गया। जल्दी जल्दी निकालने के चक्कर में वो और उलझाई गई। उसे डर था कि किसी भी वक्त राहिल वॉशरूम से निकल आएंगे। न जाने क्यों वो उनकी गहरी निगाहों से खायब सी रहती थी। उसने झटका मारकर पल्लू निकालना चाहा। आराम से, दुपट्टा फट जाएगा। पीछे से आने वाली आवाज़ पर घबराकर वो 2 कदम पीछे हुई। राहिल ने आगे बढ़कर नरमी से उसका पल्लू हैंडल से निकालकर उसके तरफ बढ़ा दिया। उसने कांपते हाथ से पल्लू थामते उनकी तरफ देखा तो गहरी नज़र उसके चेहरे पर ही टिकी थी।
वो घबरा कर भागती हुई कमरे से बाहर आ गई। पीछे राहिल बंद दरवाजा देखते रहे। बन्नो रानी तुम्हें सयानी होना ही था। जैसे ही शर्मीन हाल कमरे में दाखिल हुई, नरमीन ने उसे बाजुओं से पकड़कर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। अरे अरे, क्या हो गया नरमीन, होश में तो हो? जी जनाब, मैं तो होश में हूँ, पर शाम तक आपके होश उड़ने वाले हैं। क्यों, शाम को क्या कोई बला आ रही है? शर्मीन ने सवेरा के करीब बैठकर शहीर को गोद में लिया और प्यार करने लगी। बला नहीं, बिल्ला आ रहा है। सवेरा की हंसी छूट गई। फॉर गॉड सेक नरमीन, ऐसे तो ना कहो। क्या ऐसे तो ना कहो? भाई बिल्ली आंखों वाले को बिल्ला ही तो कहेंगे ना। बिल्ली आंखों का सुनकर शर्मीन का दिल धड़क उठा। किसकी बात हो रही है? उसने सवेरा से पूछा। तुम्हारी साजिदा खाला और फहीम आ रहे हैं शाम को। शर्मीन की निगाहें झुक गईं। फहीम उसका खालाजाद ही नहीं, मंगेतर भी था। हाय हाय, कैसी शर्म आ रही है ना। नरमीन ने उसकी हालत से हंस उठाते हुए कहा। देख रही हैं अभी ये कैसे तंग कर रही है मुझे? शर्मीन ने मस्तूमी गुस्से से रणवीर को घूरा। तंग तो मैं करूंगी तुम्हें, तुम भी तो हर वक्त छेड़ती रहती हो मुझे। नरमीन ने भी तुनक जवाब दिया। किसकी मजाल है जो मेरे अलावा मेरे मंगेतों को छेड़ता रहता है? फरदीन की अचानक आमद पर तीनों चौंक गईं। फरदीन ने सवेरा के पहलू में बैठकर उसे बाजू के हल्के में ले लिया। अच्छा, तो इसका मतलब तो मेरी बहन को छेड़ता रहता है? सवेरा ने उसका कान खींचा। जनाब, आपकी बहन को छेड़ने के तमाम जुमला हकूक अपने नाम करवा चुका हूँ, मंगनी की सूरत में। चल चल, ज़्यादा बातें मत बना, मार खाएगा मुझसे अगर कोई फजूल हरकत की तो। और ये बता कि ये राहिल कहाँ है? राहिल लाला तो चाचा जान के साथ ज़मीनों पर गए। राहिल के जिक्र पर शर्मीन की आंखों में रात के मनाजिर घूम गए। बीबी जान, शमसा बुआ रात के खाने का पूछ रही हैं। आप बता दी कि क्या क्या बनाना है तो मैं उन्हें बताऊं। सवेरा हाजरा बीबी से रात के खाने का पूछने आई थी। अपनी धुन में बोलते उसे अचानक किसी गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। बीबी जान, आप ठीक तो हैं? हाजरा बीबी का सर सजदे में था और वो हौले हौले लरज रही थी। सवेरे ने उनकी कमर पर हाथ रखा तो उन्होंने आहिस्ता से सर उठाया। उनका चेहरा आंसुओं से तर था। खैरियत तो है बीबी जान, आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? सवेरा उनके करीब ही बैठकर अपने पल्लू से उनका चेहरा साफ करने लगी। मुझे बताएं, क्या परेशानी है? जवाब में जो कुछ हाजरा बीबी ने बताया वो उसका दिल दुखा गया था।